اور عمران احمد خان نیازی صاحب کا وکیل تھا، تو لہٰذا ان کی اجازت سے میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ آج پنجاب حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو ہم نے چیلنج کیا تھا، جس کے ذریعے عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگائی گئی تھی۔ آج اس میں سماعت ہوئی، آپ کے کچھ دوست وہاں پہ موجود تھے، اور عدالت نے جو ہیں تمام کیس کا باریکی سے جائزہ لینے کے بعد اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو سننے کے بعد یہ قرار دیا ہے کہ چونکہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک حکم نامے کے ذریعے اور جیل حکام کے کنسنٹ سے 2 ایام ملاقاتوں کے لیے رکھے تھے، اور وہ ملاقاتیں ہر حالت میں ہوں گی، اور آج بھی شیڈول ڈے ہیں، منگلوار اور جمعرات۔ تو آج کے دن جو ملاقات ہیں وہ ملاقات ہوگی، اور ان احکامات کا ICA پہ کوئی اطلاق نہیں ہوگا اور نہ ان ملاقاتوں کو روکا جائے گا۔ تو لہٰذا آج عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ جو نئے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں، میں نے سینیٹرز، اور ان کی بہت ساری کنٹمپٹ پٹیشن بھی پینڈنگ ہے، اور جیل حکام کو بھی اس حوالے سے انتظامی مسائل کا سامنا ہے۔ تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ خان صاحب سے مشاورت کے بعد آج یا کل کسی روز جیل حکام کے ساتھ بیٹھ کے ہم SOP پہ منظوری دیں گے کہ نئے لوگوں کی ملاقات کا طریقہ کار ہم وضع کر سکیں، تاکہ وہی لوگ خان صاحب سے مل سکیں جن کے ساتھ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک آدمی ریٹ جو ہے عدالت میں دائر کرے کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں اور خان صاحب کی اس میں کنسنٹ نہ ہو۔ تو لہٰذا SOP بھی آج خان صاحب سے ملنے کے بعد آج بیرسٹر گور صاحب، میں عمیر نیازی صاحب اور رانجھا صاحب، ہم 4 وکلاء خان صاحب سے ملیں گے۔ 3 بجے ہماری ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی آگے پیش رفت ہوگی پھر آپ کو آگاہ کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آخر میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی جو ہے نا تھوڑی سی استفسار ہوئی ہے جج صاحب کی طرف سے، سادہ زبان میں بتائیے گا کہ تاکہ عام لوگ سمجھ سکیں کس بات پہ ہوئی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اور سپرنٹینڈنٹ جیل یہ سرکاری لوگ ہوتے ہیں، اب ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو تھریٹ الرٹ کا جواز بنایا گیا۔ اچھا ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، آج بڑی ایک حیران کن انکشاف ہوا ہے۔ ان کے دستاویزات دیکھ کے پتہ چلا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ 3 دہشت گرد افغانی گرفتار ہوئے کوئی 7 مارچ کو، وہ افغانی جو تھے آج IB کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ وہ تو جنوری میں گرفتار ہوئے تھے۔ تو جنوری میں گرفتار شدہ لوگوں کی گرفتاری انہوں نے 7 مارچ کو بتا دی۔ اب اس کے پیچھے اب یہ بھی دیکھنا ہوگا، اتنا بڑے جھوٹ اگر یہ بول رہے ہیں تو یہ نقشے تھے بھی یا نہیں تھے، وہ افغانی کس کھاتے میں گرفتار ہوئے ہیں، پوری جو ہے آج تحریری طور پر انہوں نے دیے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں پنڈی میں، وہ جنوری کے مہینے میں گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے گرفتار شدہ لوگوں کو اب اس کام کے لیے استعمال کیا انہوں نے کہ تھریٹ الرٹ کے جواز کی جسٹیفیکیشن کے لیے ان کی گرفتاری کو کوٹ کیا گیا۔ جیل اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب کا استفسار ہوا، وہ یہ ہیں کہ چونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کھل کے عدالت میں کہ جی جو حکم ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کا وہ اس کا اطلاق اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ جو ہے رول کرے گا، وہ تابع نہیں ہے بلکہ انتظامی حکم تابع ہیں عدالتی حکم کے۔ تو وہ ادھر ادھر کی انداز میں یہ بتا رہے تھے کہ ہماری کنسنٹ نہ لکھی جائے، تو اس دوران جو ہے وہ تھوڑی سی یہ باتیں ہوئی۔ جسٹس سردار اعجاز صاحب کا اثر برس کرتا ہوں۔ دیکھیں، دہشت گردی بڑا سیریس ایشو ہے اور ہم اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں، خاص کر جب کہ خان صاحب جیل میں ہیں، اور ایسے کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے جس میں کوئی کمپرومائز ہو جائے کسی صورت۔ ہمارا صرف ان سے مدعا یہی تھا، کل بھی میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے ساتھ ایک مسئلہ پہلے سے طے ہو چکا ہے، اور وہ ہے ٹیوزڈے اور تھرسڈے، اور آپ ہمیں جب ملاقات کے لیے دیتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ہم ایون وکلا بھی جب جاتے ہیں تو ہمیں میکسیمم 30 منٹس کا ٹائم دیتا ہے، ایسے ہی ہے نا، 30 منٹ سے کبھی زیادہ ٹائم نہیں دیا، اور ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس ٹائم پورا ہو گیا، اب چلیں پھر فیملی کے ساتھ، تو یہ میکسیمم ٹائم ہے۔ ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ 2 دن، یہ تقریباً 10واں ریٹ پٹیشن ہے جو اس کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو گیا ہے۔ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ملاقات کا سلسلہ جو ان کے ساتھ طے ہوا ہے وہ سلسلہ ہمارا جاری رہے،
अब चूँकि हालात बेहतर है, इसलिए हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो अभी बाहर है उनका भी राइट है, बाकी लोग मिलते हैं तो वो भी विजिटेशन का सेपरेट राइट है, वकीलों का सेपरेट था और जो बाकी विजिटेशन है वो राइट सेपरेट है। इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे थे कि आप सारे प्रिकॉशंस ले लें, हम किसी सूरत आपकी सिक्योरिटी रेस्ट को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हम सिक्योरिटी को किसी सूरत नहीं आने देते कि आप कहें कि हर सूरत। हमने सिर्फ उनको कहा था जो आपका प्रोटोकॉल है उससे हम गुजर करके आएंगे, लिमिट करके हमने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी, पहले 6 की इजाज़त है, आज 4 की इजाज़त मिली, लेकिन ये इजाज़त होनी चाहिए ताकि हमारी भी तसल्ली हो और इस बात की भी तसल्ली हो कि खान साहब की तबीयत ठीक है और सिक्योरिटी रेस्ट। मरवत साहब, आप लोगों की तरफ से जस्टिस सरदार एजाज साहब की अदालत में कौन सी चीज़ चैलेंज हुई है? जो है वो सीरियस नज़र नहीं आ रही। कल भी जो समाअत हुई उसमें बैरिस्टर अली जफर नहीं पेश हुए, वो यहाँ मौजूद थे। आज पेश हुए नहीं, देखिए वो बड़ी बहुत सीरियस इशू है और हमने सीरियसली लिया है और हमारी 80 सीट है, 78 सीट है, 67 सीट वुमेन की है और 11 जो है नॉन मुस्लिम की। पेशावर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, हियरिंग हो गई है और जज साहिबान ने फरमाया कि 1 बजे इंशाल्लाह ताला उसका डिसीजन आएगा। मरवत साहब, अता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खान साहब जो कहते हैं उनको वही पका पकाया खाना हर चीज़ मिलती है, साइकिल, 2 कमरे, गैलरी, उन्होंने बड़ी चीज़ें गिनवाई कल। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। अता तारड़ साहब ने 2 बातें की हैं। पहली बात, उन्होंने अपनी वजारत का आगाज़ ही झूठ से कर दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के चक्कर में मुहिम शुरू की है, जिसकी हमारे चेयरमैन साहब ने और PTI ने खुल के तरदीद की। ऐसे झूठ से परहेज करना चाहिए। ये बदगुमानियाँ आवाम के जहनों में पैदा की जा रही है कि गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में को मईशत के हवाले से कोई नुकसान देना चाहती है। गलत है, लघु है, बेबुनियाद है। दूसरी बात, जो उन्होंने पिक्चर पोर्ट्रे किया है कि जी खाने हैं, साइकिल हैं, कमरे हैं, ये सारी बात गलत बयानी है। खान साहब को एक सेल में रखा गया है, साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद और सुपीरियर क्लास को एंटाइटलमेंट होने के बावजूद खान साहब को कोई सहूलियात नहीं दी गई हैं। जेल के कानून में खुद प्रोविज़न है कि कोई भी जेल का कैदी या वलाती अपने खर्चे पे अपना खाना खा सकता है। ऐसे बहुत सारे कैदी वलाती हर जेल में होते हैं, अडियाला में भी हैं, जो अपने खर्चे पे अपनी मर्ज़ी का खाना, और वो मर्ज़ी का खाना भी इस तरह नहीं है। कुछ चंद आइटम हैं जो जेल मेन्यू में प्रोवाइड किए गए हैं और उसी के मुताबिक खाना दिया जाता है। जो वो बता रहे हैं कि इतने कमरे हैं, ये सब सरासर झूठ है। हाई नामसाइद हालात का शिकार हैं, लेकिन उसका हौसला है, उसकी इस्तेकामत है कि वो इन तमाम मसाइल का डट के मुकाबला करे। अली अमीन जेल है जो इमरान खान से गुफ्तगू भी नहीं करने देता था अंदर मीडिया से। आज मैं देख रहा था कि उसकी चेहरे की हवाएं उड़ी होती, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, सुपरिटेंडेंट जेल जो है उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, हमें इनका इदराक है। बहुत बड़ी जेल है और हम ये नहीं चाहते हैं कि अपने मकसद के असूल के लिए सरकारी मुलाजिमीन को तख्ते मश्क बनाएं। अलबत्ता आज अदालत के सामने मैंने कहा 7 माह से खान साहब के साथ हमारी मुलाकातें वकला की। कानून कहता है कि वकला की बातचीत को कोई दूसरा आदमी समाप्त नहीं कर सकता है। इस पे सरदार एजाज इसाक साहब ने रिट अलाउ की और डायरेक्शन दी जेल हुकाम को कि आइंदा वकला की मीटिंग में कोई जो है इनका अमले का आदमी नहीं बैठेगा। जिसकी वायलेशन हुई, जिस पे मैंने तवीनी अदालत की दरख्वास्त सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दायर की और अब सुपरिटेंडेंट जेल ने जो है यकीन दहानी कराई। आज हमारी मुलाकात है और इंशाअल्लाह पहली दफ़ा होगा कि हमारी मुलाकात में कोई जेल हुकाम का बंदा नहीं बैठा। अच्छा सर, अली अमीन गंडापुर की कल मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, तो अब एक तो PTI के जो लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं, ख़ासतौर पे वर्कर, और दूसरे नंबर पे नून लीग ये तासुर दे रही है कि जैसे जाली हुकूमत को अब PTI ने तस्लीम कर लिया। जो बयानिया था धांधली के हवाले से वो आपका ठुस हो गया था। नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। वो सूबे का वज़ीर आला है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव, और सूबे के जो बहुत सारे फंड्स हैं वो वफाकी हुकूमत ने देने हैं। वर्किंग रिलेशन बहरहाल डिफेक्टिव हुकूमत भी समझो वर्किंग रिलेशन रखना है और वर्किंग रिलेशन की खातिर वो इधर आया हुआ था और अपना डिमांड उसने करना था। तो जिसने वज़ीर आज़म के ऑफिस को ऑक्यूपाई किया उसी से मुतालबा किया जाएगा। तो ये जो तनकीद कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बिल्कुल उनका मुलाकात बड़ा ज़रूरी था और मुलाकात हुई है और इंशाअल्लाह ताला इसकी पेशरफ कमेटी बनेगी और KP की हुकूमत को अपना ड्यू शेयर मिलेगा जो बहुत अरसा से। जो नोटिस जारी हुए हैं वज़ीर आला KP को, तो अब क्या उनकी मकसद में तो नहीं है? नहीं,
वो जो नोटिस इशू हुआ है वो इलेक्शन कमीशन का केस है, वो ऐसा नहीं है जिससे उसकी सीट वगैरह इलेक्शन से के हवाले से बातचीत करने के लिए जो मुलाकातों का सिलसिला था क्या इसलिए रोका गया था? देखो शायद ये भी इसी की एक कड़ी थी, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है। कल कोई और सवाल अगर है? चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो नवाज शरीफ को जो है ना उन्होंने आला तरीन प्रोटोकॉल दे दिया, क्या कानूनी हैसियत बनती है इसकी? ये तो आप चीफ मिनिस्टर से पूछिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। ये लोगों को खदशा है कि ये हुकूमत खुद बहरान है, ये मुल्क को आवाम को बहरानों से नहीं निकाल सकेगी। किसी को गैर ज़रूरी तौर पर गैर तरीके से जो उसका इंटाइटल नहीं है उसको प्रोटोकॉल देना ये बिल्कुल गलत है और मजम्मत करते हैं। अगर और हम भी करते हैं, उन्होंने सरकारी आटे के तेले पे नवाज शरीफ की तस्वीर चस्पा कर दी है और इसके अलावा प्याज और केले की दीगर सूबों को तरसील जो है रोक दी है। रमज़ान के महीने में दूसरे मुसलमान पाकिस्तानियों के साथ ऐसे अमल की हम शदीद मजम्मत करते हैं। सर ये मरियम नवाज जो तस्वीरें उन्होंने पब्लिश करवाई थी इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले से मोटो लिया था, साकिब निसार साहब ने जजमेंट दी है और ये सब कुछ ख़त्म करवाया था कि इसमें लीडरशिप अपना नाम नहीं देगी और लीडरशिप अपने पब्लिसिटी पब्लिक पैसों पे नहीं कराएगी। सर इसीलिए मरवत साहब एक सवाल, मरवत साहब एक बिल उन्होंने कहा है कि मंजूर किया जाए, मरियम नवाज की गाड़ी की डेकोरेशन करनी है, टायर चेंज करनी है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो प्याज और कीमतों के तयन में अपना विजिट जो है उनकी वो हेलीकॉप्टर से करती है, आपने देखे हैं। तो लिहाजा वो प्याज की कीमत से इतनी बचत नहीं होगी जितना खर्च हेलीकॉप्टर। सर वो गाड़ी के लिए उन्होंने 2,72,00,000 रुपए का बिल जो है वो मंजूर करवाया, गाड़ी की रेनोवेशन के लिए, टायर चेंज करवाने। ये मरियम नवाज की गाड़ी के लिए सर क्या कहेंगे? वो कहती है मैट भी पसंद नहीं है। मैट हमें इल्म हुआ है कि कुछ सऊदी कंपनियां यहाँ पाकिस्तान में आके जो मंसूबा है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है $25 बिलियन तक। तो लिहाजा लाजिमन फिर इसके लिए तसर्रुफ में लाने के लिए भी कुछ अवामिल तो इन्होंने ढूंढने हैं। है इसलिए कि वो आपको लगता है कि वो दोबारा लंदन रवाना हो जाएंगे? अगर तबीयत खराब है तो अल्लाह उसको शिफा दे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये मंजरनामे से तो वो हट गए हैं, अब मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कि वो उनको कोई और सियासी